Assalamu alaikum everyone. I hope all of you have been doing all right. Good evening. I hope all of you can listen to my voice. आवाज आ रही है आप सब लोगों को? Yes. Okay. Good. Good. Thank you. Thank you. Okay. We will be talking about American Revolution is child of enlightenment. इस पर हम बात करेंगे in first half of our lecture, and in second half of our lecture we will be talking about formation and structure of American Constitution. First half, American Revolution is child of enlightenment, and then we will be talking about formation and structure of War of Independence. ठीक है? पिछली क्लास की डिस्कशन से you do understand what Americans mean by revolution. They differentiate the era of revolution and the era of actual war. The era of revolution starts from the very day on which America was colonized, firstly, and then from there on, how Americans resisted the exploitative, discriminatory laws, taxes and policies of the British Empire. उस सारी एफर्ट को वो रेवोल्यूशन का नाम देते हैं, जिसमें उन्होंने लॉज को रेजिस्ट किया, बाइकॉट किया, अवेयरनेस दिखाई, इंडिपेंडेंस की तरफ गए, वो सारा जो है रेवोल्यूशन कहलाता है. नाउ फिलोसोफर्स ये कहते हैं, हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि रेवोल्यूशन जो है it is child of enlightenment. Now this term needs to be explained. Enlightenment को हम दो सेंसेस में अंडरस्टैंड करते हैं. एक तो लिटरल मीनिंग है ना enlightenment का, आगाही, चीजों को जानना, रोशन ख्याल हो जाना, दिमाग का रोशन हो जाना, ठीक, एनलाइटन हो जाना, यानी you are no longer comfortable with the concept of being subjugated. ठीक. दूसरा, enlightenment is also a socio-political movement in the Europe that started in late 15th century and then 16th, 17th centuries are the peak time of that movement. So हम दोनों angles से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे that whether or how American Revolution is child of enlightenment. Whether or how American Revolution is child of enlightenment. Enlightenment is equated with period of Renaissance. Enlightenment is equated with period of Renaissance. Renaissance, मैंने पीछे भी बताया था, means or refers to a movement in Europe that was about rebirth of knowledge, rebirth of science, and diminishing role of religion in public and political life, where the state and religion parted their ways. तो ये जो ओवरऑल मूवमेंट है, इसका भी इम्पैक्ट है अमेरिकन के ऊपर. ठीक है, ये जो ओवरऑल मूवमेंट है, इसका भी इम्पैक्ट है अमेरिकन रेवोल्यूशन के ऊपर. ठीक है, क्योंकि it was widespread concept in Europe, and Europeans were the most migrants to
black coffee without sugar. Europeans were the most migrant force to America. So when they were coming, they were bringing with them those ideas of the Renaissance. They were not very conservative people. They were not very conservative by European standards, because these Europeans that now were coming to America were primarily influenced by Renaissance. और हमने पीछे एक्सप्लोरेशन की कॉजेस में भी पढ़ा कि रिलीजियस परसिक्यूशन की वजह से लोग यहाँ आ रहे थे. तो जो रिलीजियस परसिक्यूशन की वजह से यहाँ लोग आ रहे थे, वो वन वे और दी अदर इम्पैक्टेड और अफेक्टेड बाय रेनेसांस थे. और जो पहली वैल्यूज हमने यहाँ डिटरमिन की, हमने ये कहा, आपने आगे पढ़ा भी है कॉजेस में, हमने बात की थी ग्रेट अवेकनिंग की. तो हमने ये डिसाइड किया था कि भाई स्टेट और रिलीजन दो अलग चीजें होंगी, एक का दूसरे पर इन्फ्लुएंस नहीं होगा. खुदा और बंदा अपना ताल्लुक बनाएंगे, रियासत और सिटीजन अपना ताल्लुक बनाएंगे. ठीक है, तो ये तो एक ओवरऑल मूवमेंट का असर है. अब इस थ्रू आउट मूवमेंट में डिफरेंट फिलोसफर्स ऑल्सो प्लेड देयर रोल, और उस रोल की वजह से वो जो थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग जो डेवलप हुई, वो जो यहां के इंसानों का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, थॉट का, वे ऑफ थिंकिंग का, उस ट्रांसफॉर्मेशन में कंट्रीब्यूशन किसका है? वो इनलाइटनमेंट कहां से आई है? क्योंकि प्राइमरीली इनलाइटनमेंट क्या है? वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर थिंकिंग प्रोसेस है ना जी. वो कहां से आई? वो आई है डिफरेंट फिलोसफर्स से, जिनमें हम जॉन लॉक का नाम नहीं भूलते. द इंग्लिश फिलोसोफर हु फॉर द फर्स्ट टाइम spoke about a more accountable government, a more responsive and responsible government, more accountable government, more responsive and responsible government. ये वो टाइम है, 1704 में इनकी डेथ हुई. ये वो टाइम है when philosophers started to determine कि रियासत का रोल जो है वो कम होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट्स लाइक सिविल लिबर्टीज, कॉन्सेप्ट्स लाइक राइट्स, कॉन्सेप्ट्स लाइक रूल ऑफ लॉ, कॉन्सेप्ट्स लाइक इक्वालिटी, वो ऐड होते, वो रियासत की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. तो लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी एंड लेटर ऑन इसमें ऐड होगी इनवायलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन पर्सन. ठीक है, जिंदगी, आजादी और जायदाद की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी, और इनवायलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन पर्सन, ह्यूमन डिग्निटी भी रियासत की जिम्मेदारी है. रियासत लोगों को बेइज्जत नहीं करेगी, रियासत उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखेगी, प्रोटेक्ट करेगी. रियासत की जिम्मेदारियां बताइए. इससे पहले जो थ्योरीज ऑफ गवर्नेंस इन वोग थी, वहां तमाम जिम्मेदारियां शहरियों की होती थी, और बादशाह एज ए मैटर ऑफ राइट गवर्नेंस करते थे. डिवाइन राइट का कॉन्सेप्ट आप सारे लोग जानते हैं. ठीक है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन वन वे हम कह सकते हैं. सोशल कॉन्ट्रैक्ट शुरू तो हॉब्स से होता है, लेकिन हॉब्स वाला जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में उतना रेलेवेंट नहीं है. इनवायलेबिलिटी नहीं, इनवायलेबिलिटी, इनवायलेबिलिटी, वायलेट नहीं करेंगे आप ह्यूमन डिग्निटी को, बेइज्जत नहीं करेंगे लोगों को, लोगों की इज्जत नफ्स का ख्याल रखेंगे, सड़कों पर नहीं घसीटेंगे, तशद्दुद नहीं करेंगे, गायब नहीं करेंगे लोगों को, आर्बिट्ररी अरेस्ट्स नहीं होंगी. इनवायलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन पर्सन. जॉन लॉक. लॉक के बाद फिर
फ्रांस के 2 लोग इंपॉर्टेंट हैं इसी थॉट प्रोसेस को आगे डेवलप करने में। उनमें मॉन्टेस्क और रोसो दोनों का नाम ऑब्वियसली आता है। जॉन जॉक रोसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की किताब एक बाकायदा दी। जॉन जॉक रोसो ये भी फ्रेंच फिलोसोफर थे। इन्होंने भी एक ऐसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट दिया जिसमें इन द अल्टीमेट एनालिसिस अवाम हुक्मरान होंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल विल एंड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल विल, ठीक है, कि अवाम सबसे पहले एक मुआहिदा करते हैं आपस में रहने का, पीसफुली कोएग्जिस्ट करने का, एंड देन they develop a general will of the majority of the people, and then that general will establishes the government. When making the law, this general will becomes active. When implementing the law or abiding by the law, this general will becomes objective. वही अवाम हुक्मरानी भी कर रहे होते हैं थ्रू देयर गवर्नमेंट, वही अवाम उस गवर्नमेंट की अहकामात को फॉलो भी कर रहे होते हैं बाय बीइंग गुड सिटीजंस। सो हुकूमत क्या है? इट इज जस्ट एन एजेंट टू एक्सप्रेस दैट जनरल विल। हुकूमत जो है वो उस एक एजेंट से ज्यादा कुछ नहीं है जो अवाम की मर्जी को इंप्लीमेंट करेगी। सो यके बाद दीगरे इन फिलोसोफर्स ने डिवाइन राइट की थ्योरी को खत्म करके रख दिया। ठीक है जी, डिवाइन राइट की थ्योरी को उन्होंने खत्म करके रख दिया। वो जो जिल्ले सुबहानी और जिल्ले इलाही वाला कॉन्सेप्ट था यूरोप में, वो खत्म हो गया। देन कम्स, अब यहां तक हम कॉन्सेप्चुअल लेवल पर स्टेट को देख रहे हैं जहां बादशाह की बात नहीं की जा रही, रियासत की हुकूमत की जिम्मेदारियां बताई जा रही हैं और अवाम को कहा जा रहा है कि पैरामाउंट स्टेटस अवाम के पास है। अ कॉन्सेप्ट दैट द यूरोप डिड नॉट नो प्रीवियसली, अ कॉन्सेप्ट दैट द यूरोप डिड नॉट नो प्रीवियसली। अब यहां से आगे मॉन्टेस्क लेकर चलते हैं बात। मॉन्टेस्क, फेमस फ्रेंच politician, lawyer, philosopher, इन्होंने फिर एक्टिव गवर्नेंस होनी कैसे है, वो जो यूरोप जहां द जज, ज्यूरी एंड द हैंगमैन सेम जज होता, सेम किंग होता था, वहां इन्होंने कहा जी पावर्स को डिवाइड करें। बादशाह सलामत ही सजा सुनाते थे, बादशाह सलामत ही इल्जाम लगाते थे, बादशाह सलामत ही एग्जीक्यूट करते थे सजा को। इसने कहा भाई साहब ऐसे नहीं चलेगा। The power has to be divided and clearly demarcated. ठीक है, power has to be divided and clearly demarcated between 3 organs of the state. ठीक है, 3 organs of the state. Well, Mahmood, I would tend to agree with you in this context. So, पावर को डिवाइड करें और क्लियरली डिफाइन करें कि कौन सा इदारा क्या करेगा। उसने कहा कि रियासत में हुकूमत है, हुकूमत में 3 ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी। इन तीनों के अपने इख्तियारात होने चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी, इन देयर कोर फंक्शंस, ये आजाद होने चाहिए, किसी का दूसरे पर इन्फ्लुएंस ना हो। हाउएवर इन्हें इतना आजाद भी ना छोड़े कि ये डोमिनेट करें या सोलो फ्लाइट पर चले जाएं, बिकॉज गवर्नेंस इज एन ऑर्गेनिक होल। हुकूमत करना एक ऑर्गेनिक होल है। हम बार बार
उसको डेडलॉक पर नहीं ला सकते या किसी एक इदारे के हवाले नहीं कर सकते. सो ऑल इंस्टीट्यूशंस हैव टू इंटरेक्ट विद ईच अदर वन वे और द अदर. सारे इदारों में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट तो बहरहाल करना है. तो सेपरेशन ऑफ पावर के साथ हम जो है वो बात करेंगे चेक्स एंड बैलेंसेस की. इम्तियाज पूछ रहे हैं कि these philosophers are inspired the French Revolution of 1789. Yes, some inspired the revolution, some were inspired by the revolution. लेकिन Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu और हमारे जो लॉक हैं ये उससे पहले के हैं सारे philosophers. French Revolution was greatly influenced by these philosophers. खैर, तो मॉन्टेस्क्यू ने वो सिंगल बंदे के अंदर पर्सन बेस्ड गवर्नेंस जो है वो खत्म करके इंस्टीट्यूशनलाइज्ड गवर्नेंस की बात की, डिवीजन ऑफ पावर की बात की, सेपरेशन ऑफ पावर की बात की, अकाउंटेबिलिटी एंड चेक्स एंड बैलेंसेस की बात की. अब ये सारे नए नए ख्यालात लोग यूरोप से लेकर अमेरिका जा रहे हैं और अमेरिका वाले यूरोप से ये चीजें सीख रहे हैं. और चूंकि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका की रादर लूज है, क्लियर सेंस में मोनार्की एग्जिस्ट नहीं करती. मोनार्की के एजेंट्स गवर्नर्स की सूरत में बैठे हैं और गवर्नर्स के नीचे हाउस ऑफ बर्जेस जो सूबाई पार्लियामेंट है वो भी एग्जिस्ट करती है. तो टेक्निकली वहां मोनार्की नहीं है. सो यहां ग्राउंड इज देयर टू एक्सपेरिमेंट दीज आइडियाज. Atmosphere, environment is there to talk about these ideas, to talk about implementing these ideas. America is a vast country जहां पर कोई मोनार्की नहीं है, जहां पर कोई बादशाह डायरेक्टली रूल नहीं कर रहा है. तो वहां इसकी इंप्लीमेंटेशन पर ज्यादा बेहतर गुफ्तगू हुई और लोगों को ज्यादा डिसेमिनेशन और इंफॉर्मेशन हुआ और लोगों ने ज्यादा इसके ऊपर सोचा, ज्यादा डायलॉग किया और ज्यादा बेहतर माहौल मिला इन आइडियाज को अमेरिका में पनपने का, चलने का, डेवलप होने का. खुद अमेरिका में भी मुख्तलिफ लोगों ने इस पर बात की. बेंजामिन फ्रैंकलिन gave the concept of deism. Concept of deism. उसने अमेरिकन्स को यह समझाने की कोशिश की, those good Christians जो अमेरिका में रहते थे, अच्छे वाले क्रिश्चियंस, कंफर्टेबल कैथलिक्स, कि हर चीज अल्लाह पे डालो और चलते चले जाओ. डीइज्म या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या उन्हें समझाने की कोशिश की. उन्होंने कहा जी ये बात ठीक है कि कायनात अल्लाह ने बनाई, ये बात भी ठीक है कि कायनात को बनाने के बाद सेट प्रिंसिपल्स ले डाउन अल्लाह ने किए, लेकिन उसके बाद अल्लाह ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया कायनात के मामलात में. He does not interfere in day-to-day affairs of humans. ग्रेटर लेवल के ऊपर एक ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में कायनात की तख्लीक खुदा ने की है. एक ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में कायनात को चलाए रखने के लिए मैकेनिज्म डिवाइस कर दिया है. खला है, समंदर है, मिनरल्स हैं, वाटर है, चीजें हैं, चल रही हैं अपने हिसाब से. लेकिन रूटीन लाइफ जो इंसानों की है वो आलमे असबाब की दुनिया है. रूटीन लाइफ जो इंसानों की है वो इम्कानात की दुनिया है. वहां खुदा इतना फारिग नहीं है कि वो आपके और मेरे जाती मसाइल जो है वो उनमें वो दिलचस्पी ले. He has bigger things to plan and worry about. इसलिए इंसानों की जो तरक्की है, प्रोग्रेस है, वो इंसानों के अपने हाथ में है. आलमी असबाब की दुनिया है.
इम्पैक्ट नजर नहीं आएगा। If you will keep doing things the way you have been doing, you will keep getting the results that you have been getting. If you want different results, you will have to do things differently. ठीक है, ये बुनियादी तौर पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने समझाने की कोशिश की कि खुदा पे मत डालें, डीइज्म है, उसने बना दी दुनिया, बनाकर आपके हवाले कर दी, अब इसको कैसा बनाना है ये आप पर मुनहसर है। ख्वाबे गफलत से लोगों को जगाकर काम धंधा करने की डगर पर डालने की कोशिश है और उस ब्लाइंड ओबीडियंस से लोगों को निकालने की कोशिश है। उसके बाद थोड़ा और आगे आते हैं तो हमें थॉमस पेन मिलते हैं 1775 के करीब। थॉमस पेन एक किताब लिखते हैं, किताब 4 आदर लिखते हैं, 106 सफ़ों का है, कॉमन सेंस। 1 मिलियन के करीब कॉपीज इसकी बिकी थी उस जमाने में, 1775 में। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस दैट वी कॉल अमेरिकन रेवोल्यूशन अ चाइल्ड ऑफ एनलाइटनमेंट, कि जब 1775 में एक राइटर की 10 लाख कॉपीज बिक जाए तो दैट मीन्स द नेशन इज ऑलरेडी इनलाइटेंड। हमारे यहां तो आज भी बड़े से बड़े राइटर की किताब भी 1100 कॉपीज छपती हैं 22 करोड़ के मुल्क में, तो वहां 2.5 करोड़ के मुल्क में 10 लाख से ज्यादा कॉपीज बिक गई थी थॉमस पेन की कॉमन सेंस में थॉमस पेन एक डेमोक्रेटिक आर्ग्यूमेंट डेवलप, एक फंडामेंटल राइट्स पर बेस्ड आर्ग्यूमेंट डेवलप करते हैं। कॉमन सेंस में थॉमस पेन कहते हैं दैट इन टुडेज डे एंड एज, यानी 1775 में वो कहते हैं इन टुडेज डे एंड एज इट इज डिसग्रेसफुल फॉर ह्यूमंस, इट इज डिसग्रेसफुल फॉर ह्यूमंस टू बी गवर्न्ड बाय अदर ह्यूमंस। आज के जमाने में 18वीं सदी में वो कह रहे हैं आज के जमाने में इंसानों की जो डिग्निटी है उसके ये खिलाफ है कि उन्हें कोई इंडिविजुअल रूल करे। ह्यूमंस मस्ट बी गवर्न्ड थ्रू ए सिस्टम बैक्ड बाय दोज whom it governs। इंसानों पर हुकूमत किसी निजाम की होनी चाहिए और उस निजाम को लेजिटिमेसी हासिल होनी चाहिए उन अफराद की जिन अफराद को यह निजाम गवर्न कर रहा है। अ लेजिटिमेट सिस्टम गिवन बाय द पीपल फॉर द पीपल, अ लेजिटिमेट सिस्टम गिवन बाय द पीपल फॉर द पीपल। ठीक है, उन्होंने 1775 में मोनार्की को अनमीनिंग इंस्टीट्यूशन कहा। अनमीनिंग इंस्टीट्यूशन कि भाई ये बादशाहत क्या है, किंगशिप क्या है, ये तो एक लायानी इदारा है जिसका कोई मतलब ही नहीं और ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, if they were emphasizing so much on natural laws and human dignity, why did they not talk about slavery? slavery की तरफ आते हैं, उसका एक बिल्कुल अलग माहौल है। तो स्लेवरी का जब बारी आएगी तब हम उस पर बात करेंगे, अभी स्लेवरी की बारी नहीं आई, अभी हम उससे पीछे। खैर, तो यूं ये वो माहौल है, ये वो इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है जिसमें अमेरिकन पीपल स्टार्टेड टू ग्रो intellectually and started to get impatient about blindly following British laws। और कुछ फिलोसफर्स तो अमेरिका की ज्योग्राफी को भी क्रेडिट देते हैं क्योंकि अमेरिका बहुत खुला मुल्क था और ओपन मुल्क था और कोई डायरेक्ट इन पर जो है वो किसी का वो नहीं था कंट्रोल, तो इसलिए ये परफेक्ट जगह थी इस तरह के ख्यालात के पनपने के लिए। उस तरह की स्ट्रिक्ट
सेंसरशिप यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो आप इसको भी फैक्टर इन कर सकते हैं। दिस इंडीड इज वन ऑफ द फैक्टर्स एज वेल। दैट इज द रीजन व्हाई अमेरिकन्स ने जब अपने आप को आजाद करवाया, इवेंचुअली इस रेवोल्यूशन के नतीजे में जंग लड़के, तो they did not revert to the known systems of governance at that point of time. known system of government था monarchy, known system of government था prime minister वाला parliamentary form of government। दोनों की तरफ वो नहीं गए, they created their own system, presidential form of government, जो फिर दुनिया में आज तक चल रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं तक है। और हम जा रहे हैं, थैंक यू सो मच। ये है जी, ये डिफरेंट फिलोसफर्स को आप डिस्कस करेंगे, रेनेसां की मूवमेंट को आप डिस्कस करेंगे, पेन को डिस्कस करेंगे, डीइज्म को डिस्कस करेंगे, और फिर आप इसको वाइड अप करेंगे। यहां तक कोई सवाल है तो बताइए, फिर हम स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं। एनी क्वेश्चन एट ऑल? Okay, let's talk about the next topic. ऊपर करो यार, थोड़ा सा क्या लिखा हो समझ नहीं आ रहा। जी, Thomas Paine was an American, Benjamin Franklin was also an American, बाकी यूरोपियन है। So did British not establish imperialism there like they did? नहीं, यहाँ पे imperialism comparatively फर्क था। मैंने पिछली क्लास में बताया कि चूंकि लैंग्वेज सेम थी, एथनिसिटी सेम थी, रिलीजन सेम था, और किंग रियाया का भी और हुक्मरानों का भी सेम था, तो यहाँ उस लेवल का इंपीरियलिज्म नहीं था। इवेंचुअली जब उस लेवल का इंपीरियलिज्म लाने की कोशिश इन्होंने की, तो ये लोग फिर हमारी तरह पॉलिटिकल प्रोसेस में नहीं पड़े, ये लट लेके उनके पीछे पड़ गए और निकाल के बैठ गए। अच्छा दिखाओ ना यार, हमने फिर नीचे कर दिया। What was the response of the British king against these philosophers? Well, ये तो फिलोसफर टू फिलोसफर वेरी करता रहा। मॉन्टेस्क और रोसो तो थे ही फ्रांस के, तो ब्रिटिश किंग उनका कुछ खास बिगाड़ नहीं सकता था। मॉन्टेस्क अमीर आदमी था, पॉलिटिशियन था, खुद अरिस्टोक्रेट था। रोसो माड़ा आदमी था, वो जलील भी हुआ थोड़ा सा, एंड पे थोड़ा सा पागल भी हुआ। आखिरी जिंदगी के 4-5 साल उसने इसी तरह से गुजारे, तो उस पर भी कोई खास ब्रिटिश किंग का असर नहीं था। लॉक जो है, लॉक ऑन दी अदर हैंड चार्ल्स वन के अताब का शिकार रहे, लेकिन बाद में जब ग्लोरियस रेवोल्यूशन आ गया तो उसके बाद उन्हें फिर चैन मिल गया और उन्हें बेटर पोजीशन में मिल गई, और उन्होंने उस कोर्ट को ज्वाइन भी कर लिया। उससे पहले जेम्स II के जमाने में वो भागे ही रहे थे इंग्लैंड से। आपको पॉलिटिकल साइंस वाले टीचर ने या किसी ना किसी ने बताया ही, ठीक है जी। challenge how much is lost in special Montesquieu theory? Elaborate is the theory separation. Yes, एक पैराग्राफ would do. However, जब हम आगे कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने इसको जो है वो एक्सप्लेन करना है, हाउ सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक्स एंड बैलेंसेस वर्क, प्रैक्टिकली काम कैसे करते हैं वो मैं अभी आपसे शेयर करूंगा। ही रोट बुक द प्रिंस, नहीं, प्रिंस मैकियावेली ने लिखी थी। प्रिंस जो है वो मैकियावेली ने लिखी थी। प्रिंस 1513 में मैकियावेली ने लिखी थी, आफ्टर द वेरी शेमफुल डिफीट ऑफ रिपब्लिकन्स बाय द मेडिसीज इन 1512। ठीक है, नहीं, he was never imprisoned
जो मैकियावेली है, मैकियावेली को कुछ अरसे के लिए नजरबंद किया गया था और फिर थप्पड़ छप्पड़ मार के उसको जिला वतन कर दिया गया। Yes, this is one way to put it. He wanted his job back. तो उसने मेडिसिस की खुशामद में ये लिख दी, बाद में वो मास्टरपीस बन गया. We can say that. Okay. So next is formation and structure of US Constitution. Formation and structure. Formation and structure of US Constitution. फॉर्मेशन वाले पार्ट में हम सीखेंगे कि आइन बना कैसे. फॉर्मेशन वाले पार्ट में हम अंडरस्टैंड करेंगे आइन कैसे बना या क्यों बना फॉर दैट मैटर. ठीक. और उसके बाद हम देखेंगे कि आइन का स्ट्रक्चर क्या है, फीचर्स क्या है. प्राइमरीली स्पीकिंग स्ट्रक्चर्स मेजर फीचर्स ही की चीज है. ये सवाल आपसे पूछा भी गया है 2017 के सीएसएस के पेपर्स में. ठीक है. सो सबसे पहली बात कि फ्रॉम वेयर डिड द नीड of making the constitution arise. जरूरत कहां महसूस. 17 constitution is always important. स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि क्या ये 2021 के लिए इंपॉर्टेंट है. तो आइन इंपॉर्टेंट ही है. आइन आपने सीखना ही सीखना है. आए ना आए आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपको इनडायरेक्टली भी हेल्प करेगा और भी जहानों में, एसए में, पॉलिटिकल साइंस में, आईआर में, काफी और जहानों में भी आपकी मदद आइन करेगा. एनीहाउ, तो 1776 में जब हमने आजादी का ऐलान किया तो अब अगला मरहला जो हमें दरपेश था वो ये था कि आजादी का ऐलान तो हमने कर दिया है, मुल्क चलाना कैसे और किस सिस्टम के तहत चलाना. तो हमने नवंबर 1777 में आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन कांग्रेस ने पास किए. आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन. आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन 1777 से लेकर 1787 तक, 1787 तक इस सेमी कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट ने मुल्क चलाया है. आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन. अब 1777 में ये बने. 1777 से लेकर 81 तक हम सारे जानते हैं कि वॉर रही. 81 टू 83 तक पीस टॉक्स होती रही. 83 में फाइनली पीस टॉक्स कामयाब हुई, ट्रीटी ऑफ पेरिस हो गई. तो ये तो जंग ही का जमाना था. जमाना अमन में पहली दफा 1783 to 1787 ये लॉज नाफिज किए गए. जमाना अमन में पहली दफा 1783 to 1787 ये लॉज नाफिज किए गए. और जब ये नाफिज किए गए तो इन 4 सालों में हमें समझ आई दैट द आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन are woefully inadequate. Woefully inadequate to fulfill the requirements of a modern state. To fulfill the requirements of a modern state. So जॉर्ज वॉशिंगटन ने आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन को रोप ऑफ सैंड कहा, रेत की रस्सी कहा था. लेकिन कभी भी
हमें इकट्ठा नहीं रख सकेंगे। रीजंस क्या, क्यों हमें ऐसा लगा? डिफेक्ट्स क्या थे आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन? नंबर 1, नो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। हमारे पास कुछ सिंगुलर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ही एग्जिस्ट नहीं करती। We did not have a prime minister, a president, a governor general, or king, or anyone. There was no central executive authority. Americans had nobody to look up to for the crisis of governance. There was a Congress, और कांग्रेस एक लूज ऑर्गेनाइजेशन थी, इसलिए वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस नहीं ले सकते। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस नहीं ले सकते, तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती। There was no central judiciary either. कोई वफाकी कंट्री को कांग्रेस रन कर रही थी ना जी, मैं बता रहा हूं 50 और लोगों की कांग्रेस थी जो मुल्क को चलाने की कोशिश कर रही थी। एंड इट वाज अ कन्फेडरेशन। तो कन्फेडरेशन उतना सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं होता जितना फेडरेशन सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। कन्फेडरेशन में जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी अथॉरिटी बहुत ज्यादा नहीं होती, वहां सूबाई हुकूमतों की अथॉरिटी बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए वो लोग ज्यादा पैरामाउंट पावर रखते थे। सेंट्रल जुडिशरी नहीं, वफाकी अदालत एग्जिस्ट नहीं करती थी, डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस। मैंने अर्ज किया है जी 55। उसके बाद no central control over trade and commerce। वफाक का ट्रेड एंड कॉमर्स पर भी कोई कंट्रोल नहीं था। हर रियासत अपने लेवल पर दूसरे मुल्कों के साथ ट्रेड एंड कॉमर्स कर रही थी। तो अगर एक रियासत में क्या आ रहा है और रियासत से बाहर क्या जा रहा है उस पर ही रियासत का कंट्रोल नहीं है, तो व्हाट काइंड ऑफ अ स्टेट इट इज। और दूसरा, जब ट्रेड एंड कॉमर्स पर वफाक का कंट्रोल होता है तो ये उनका मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग भी होता है, तो वो मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग भी एग्जिस्ट नहीं करती। कांग्रेस एग्जिस्ट की थी जब फिलाडेल्फिया कन्वेंशन हुआ था, तो तब कांग्रेस बनाई गई थी। सॉरी, उससे पहले जो कांग्रेस, फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस जो बनी थी और फिर सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस बनी थी, वो कांग्रेस थी जो चला रही थी। तो उसके बाद फिर फाइनली फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में नई कांग्रेस एस्टैब्लिश। देयर वाज नो कॉमन फॉरेन पॉलिसी आइदर। अमेरिका कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स तो था, लेकिन इसकी कोई अपनी जामे फॉरेन पॉलिसी नहीं थी। कुछ रियासतें इंग्लैंड के साथ अच्छे ताल्लुकात बना के फिर रही थी, कुछ रियासतें फ्रांस के साथ, स्पेन के साथ यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं थी। नो contribution by states to federal treasury। वफाक के खजाने में सूबों की तरफ से कोई हिस्सा नहीं आ रहा, तो नेचुरली वफाक जो है वो कमजोर हो रहा था। इट वाज गोइंग पॉपर। तो जब वफाक के पास पैसे नहीं होंगे
तो जो एक कोर फंक्शन वफाक का होता है, कॉमन डिफेंस, वो भी सफर किया। देयर वाज नो कॉमन आर्मी आइदर। क्योंकि जैसे ही वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म हुई तो ये जो सिटीजन्स का मिलिशिया था, ये सिटीजन्स का मिलिशिया जो है ये डिस्पर्स हो गया, डिसबैंड हो गया, और इन सारे लोगों ने जाकर अपनी अपनी स्टेट्स के जो मिलिशियास थे, जो सेमी आर्मीज थी, वहां कमीशन ले लिया। तो कोई कॉमन आर्मी भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। सो इस तरह के हालात में चलाना मुल्क को, और इस तरह के डॉक्यूमेंट की बेस के ऊपर और इस तरह के स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर अगर आप कोई मुल्क चला रहे हो तो दैट कंट्री इज बाउंड टू बी डूम्ड। वो इवेंचुअली डूम्ड है। वो साल पहले हो जाए, साल बाद हो जाए, वो चल नहीं सकता। ठीक है, तो इन रीजंस की वजह से अमेरिका के सियाने लोगों ने यह सोचा कि इस तरह तो मुल्क नहीं चलेगा, तो क्यों ना आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन को हम ठीक कर दें। आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन को हम ठीक कर दें। तो अमेरिका के पहले दारुल हुकूमत में फिलाडेल्फिया कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन होता है 1787। ठीक है, ये कन्वेंशन was basically to iron out defects of articles of confederation. Defect of articles of confederation. ठीक है, बुनियादी पर्पस ये था। But they ended up drafting the whole new constitution. They ended up drafting the whole new constitution, which today is known as the American Constitution. कैसे बना? जब हम प्रोसेस में थे तो दो ग्रुप्स इन सियाने लोगों में से उभर के सामने आए। एक ग्रुप ने अपने आप को फेडरलिस्ट या वर्जीनिया प्लान कहा, हेडेड बाय जॉर्ज वॉशिंगटन। दूसरे ग्रुप ने अपने आप को एंटी फेडरलिस्ट या न्यू जर्सी प्लान कहा, हेडेड बाय थॉमस जेफरसन। हेडेड बाय थॉमस जेफरसन। वॉशिंगटन, जॉर्ज वॉशिंगटन, फेडरलिस्टों को जॉर्ज वॉशिंगटन हेड कर रहे थे, एंटी फेडरलिस्टों को थॉमस जेफरसन हेड कर रहे थे। They both had their own visions of the future Constitution of America. They both had their own vision of the future Constitution of America. विजन क्या था? ये लोग चाहते थे एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होनी चाहिए। कोई हो, किंग हो, प्रेसिडेंट हो, कोई हो। चूंकि
एब्सेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में मुल्क ठीक से चला नहीं। दूसरा, ये चाहते थे पॉपुलेशन बेस्ड कांग्रेस, यानी 1% anti-federalists were headed by Thomas Jefferson, the third American president, who also belonged to Virginia. ठीक, पॉपुलेशन बेस्ड कांग्रेस होनी चाहिए, छोटी रियासतों के कम नुमाइंदे होने चाहिए कांग्रेस के अंदर, बड़ी रियासतों के आबादी के लिहाज से बड़ी रियासतों के ज्यादा नुमाइंदे होने चाहिए, पॉपुलेशन बेस्ड कांग्रेस होनी चाहिए। लिमिटेड राइट टू वोट एंड प्रॉपर्टी होना चाहिए। सबके पास राइट टू वोट नहीं होना चाहिए, राइट टू वोट चंद सियाने लोगों के पास होना चाहिए, ठीक। और प्रॉपर्टी ओनर्स चूंकि स्टेक होल्डर्स हैं, उनको ज्यादा बेहतर पता है गवर्नेंस स्ट्रक्चर का, वो इस प्रोसेस का पार्ट होना चाहिए। हर एक के पास प्रॉपर्टी का राइट भी नहीं होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, एंटी फेडरलिस्ट चाहते थे पावर्स टू बी डिवाइडेड एंड डेलीगेटेड टू स्टेट्स, रियासतों को इख्तियारात दिए जाए, बिकॉज स्टेट्स आर मेकिंग द कंट्री, कंट्री इज नॉट मेकिंग द स्टेट, स्टेट्स आर मेकिंग द कंट्री, कंट्री इज नॉट मेकिंग द स्टेट। तो रियासतें चूंकि मुल्क बनने से पहले अपनी एक आजाद हैसियत रखती हैं, इसलिए यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब हरगिज ये नहीं होना चाहिए कि रियासतें अपनी आजादी को गिरवी रखें। एंटी फेडरलिस्टों का रैशनल ये, एंटी फेडरलिस्टों का रैशनल ये, ठीक है। दूसरी बात ये करते थे इक्वालिटी बेस्ड कांग्रेस। आबादी के लिहाज से मैंने अर्ज किया जी कि पावर, वो चाहते थे न्यू जर्सी प्लान वाले कि पावर्स डिवाइडेड हो, डिस्पर्स्ड हो, डेलीगेटेड टू द स्टेट्स हो, क्योंकि स्टेट्स बेसिक बॉडी है, बेसिक एंटिटी है, बेसिक यूनिट है, कॉन्स्टिट्यूटिंग यूनिट ऑफ द स्टेट है। तो अगर वो मिलकर रियासत बना रहे हैं तो उनकी आजादी इंटैक्ट रहनी चाहिए और उनके पास इख्तियारात होने चाहिए। नंबर 2, इक्वालिटी बेस्ड कांग्रेस होनी चाहिए। आबादी के लिहाज से कोई रियासत बड़ी है या छोटी है ये इररिलेवेंट है, क्योंकि हर रियासत इक्वल पार्टनर है फेडरेशन। आबादी के लिहाज से कम ज्यादा होना इज अ डिफरेंट थिंग, कम ज्यादा होना इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन पार्टिसिपेशन एंड पार्टनरशिप इन द यूनियन तो सेम है, इसलिए पार्टिसिपेशन इन द कांग्रेस भी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। राइट टू वोट जो है, राइट टू वोट टू एवरीवन, राइट टू वोट एंड प्रॉपर्टी, दोनों सबको दे। अच्छा, यहां एवरीवन से मुराद क्या है? एवरीवन से मुराद है ऑल व्हाइट मेन एक्सक्लूडिंग women, excluding blacks।
Federalists were anti-democracy. Federalists were not anti-democracy, but Federalists wanted controlled democracy. The forefathers of the American constitutions में फेडरलिस्ट लोग थे, ये कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी चाहते थे, एक ओपन एंडेड डेमोक्रेसी नहीं चाहते. तो इन्होंने कहा जी राइट टू वोट जो है एवरीवन से मुराद है व्हाइट अमेरिकन मेल्स. ठीक, वेयर एज ये लोग व्हाइट अमेरिकन मेल्स में भी फर्दर क्लासिफाई कर. अजान खत्म हो गई. क्या इसको म्यूट करें? Okay, so this is where the whole constitutional structure was now stuck. हम एक डेडलॉक का शिकार हो गए. दो पैरेलल प्लान्स हैं, दोनों तरफ जायंट्स हैं जो दोनों पैरेलल प्लान्स को पुश कर रहे हैं. तो हाउ टू रीच ए कंसेंसस. ठीक है जी. कंसेंसस डेवलप हुआ बाय a new plan. Connecticut plan. William Samuel Johnson ने कनेक्टिकट प्लान दिया. नहीं, कॉन्फ्लिक्ट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑब्वियसली था, बट थॉमस जेफरसन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे जॉर्ज वॉशिंगटन के बाद में. ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इस तरह का नहीं था जैसा हमारा आजकल पॉलिटिकल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है. सियासी तौर पर नजरियात मुख्तलिफ थे, लेकिन म्यूचुअल ऑनर एग्जिस्ट करता था दोनों के पास. कनेक्टिकट प्लान में क्या किया? काशिफ बच्चे प्रॉपर्टी के आगे क्वेश्चन मार्क लगा के भेज दोगे तो मुझे क्या समझ आएगी कि आप क्या पूछ रहे हो. प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पूछ रहे हो, प्रॉपर्टी के लीगल मीनिंग्स पूछ रहे हो, आप प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट क्या पूछ रहे हो. विलियम सैमुअल जॉनसन एक बड़ा बेहतर कॉम्प्रोमाइज था. इसने किया क्या? इसने दोनों प्लान्स की अच्छी चीजें मिलाकर इकट्ठी कर. फेडरलिस्टों को उसने कहा यू विल हैव ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी, प्रेसिडेंट हम आपको देते हैं. ठीक है, आप चाहते हो लिमिटेड राइट टू वोट हो, आप चाहते हो एवरीवन शुड हैव राइट टू वोट. एवरीवन से मुराद है गोरे मर्द हजरात. तो हम क्या करते हैं, हम इस स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी का इलेक्शन इनडायरेक्ट रखते हैं. इनडायरेक्ट इलेक्शन रख देते हैं. सारे गोरे मर्द हजरात वोट करेंगे चंद सियाने लोगों को, इलेक्टोरल कॉलेज, और वो चंद सियाने लोग जो हैं वो सिलेक्ट करेंगे सदर, जो हमारी स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होगा. तो दोनों घरों की बात हम पूरी कर लेंगे. ठीक है, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी देंगे, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन देंगे. इन्होंने कहा था पावर्स डिवाइडेड होनी चाहिए. तो मैं रिपीट कर देता हूं. मैं ये सबमिट करने की कोशिश कर रहा हूं that they said Federalists wanted a strong central executive authority. They gave a strong central executive authority in the name of president. Federalists wanted limited right to vote. Anti-Federalists wanted unlimited right to vote. So Connecticut
plan catered both. Everyone shall vote and elect an electoral college, which is a limited vote. That limited vote shall elect the president, who is the central executive authority. इस तरह दोनों प्लान्स की बात रह जाएगी. इलेक्टोरल कॉलेज है जी, एवरी स्टेट हैज इट्स ओन इलेक्टोरल कॉलेज. हर रियासत का एक अपना इलेक्टोरल कॉलेज है. ये आगे मैं अभी प्रेसिडेंट बताता हूं फीचर्स में, तो फिर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा. तो ये बात तय होगी. ये लोग चाहते थे कि स्टेट ऑटोनॉमी हो. कनेक्टिकट प्लान में मैंने पहले भी बताया है 3 दफा, चौथी दफा फिर बताता हूं. विलियम सैमुअल जॉनसन, ठीक है. तो ये लोग चाहते थे कि जो है, यार ये पिक्चर भेज देना बोर्ड की. ये लोग चाहते थे कि स्टेट ऑटोनॉमी. कनेक्टिकट प्लान ने डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, ट्रेजरी, डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, ट्रेजरी, कंट्रोल ओवर ट्रेड एंड कॉमर्स एंड सर्टन फेडरल क्राइम्स वफाक के, बाकी सब कुछ शुरू होगा. ये तय कर. ठीक है. नहीं, मिसूरी कॉम्प्रोमाइज 1820 में हुआ था, वो बाद की बात है. दिस इज नॉट मिसूरी कॉम्प्रोमाइज. मैंने बताया था इट इज नोन एज कनेक्टिकट कॉम्प्रोमाइज. तो कनेक्टिकट एक फर्क स्टेट है, मिसूरी एक फर्क स्टेट है. ठीक है. तो डिफेंस वफाक के पास होगा, फॉरेन पॉलिसी वफाक के पास होगी, ट्रेड एंड कॉमर्स इंटरनेशनल, मैं कर रहा हूं ऑलरेडी रिपीट, वफाक के पास होगा. वफाक सर्टन क्राइम्स वफाक के दायरे इख्तियार में आएंगे, जैसे ट्रीजन. एवरीथिंग एल्स आर्टिकल 4 के ने स्टेट्स की पावर्स में डाल दी. एवरीथिंग एल्स. थोड़ा सा हौसला करें, मैं आपको डेट बताता हूं. लेट इट. ये हम सितंबर 1787 में है जी. इफ यू वांट टू नो द मंथ, ये कुछ जमाने की बात. तो पावर्स, स्टेट इकोनॉमी इंश्योर होगी. अब अगला झगड़ा था कांग्रेस के ऊपर. कांग्रेस इक्वालिटी बेस्ड होनी चाहिए कि कांग्रेस जो है वो पॉपुलेशन बेस्ड होनी चाहिए. तो कनेक्टिकट प्लान ने कहा कि लेट्स हैव 2 कांग्रेसेस, 2 हाउसेस हम कर देते. हमें एक ही हाउस रखने की इतनी मुसीबत क्या पड़ी हुई है. ठीक है. 2 हाउस, बाय कैमरल कांग्रेस हो जाएगी. बाय कैमरल कांग्रेस हो जाएगी. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स पॉपुलेशन बेस्ड होगा. जितनी जिसकी आबादी उतने उसके नुमाइंदे. सेनेट टेरिटरी बेस्ड होगा और ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन पर होगा. रियासत बड़ी हो या छोटी, हर रियासत से 2 नुमाइंदे आए. रियासत बड़ी हो या छोटी, हर रियासत से 2 नुमाइंदे आए. सो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सेनेट. तो यूं ये झगड़ा भी तय है. ठीक है. उसके बाद राइट टू वोट वाली बात ऑलरेडी मैंने बता दी. अब अगला एक और बड़ा सवाल था कि स्लेव्स को कैसे काउंट किया जाए. क्योंकि साउथ की स्टेट्स जहां स्लेवरी थी, वो ये चाहती थी कि स्लेव्स को आबादी में तो काउंट किया जाए, ताकि आबादी के लिहाज से सीटें जाहिर है ज्यादा मिलती हैं. स्टेट स्लेव्स को आबादी में तो काउंट किया जाए, लेकिन वो सीटें गुरों को मिले. यानी स्लेव्स तो ना इलेक्शन लड़ सकते थे, ना वोट कास्ट कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे. तो हेड काउंट की हद तक वो एज, वो एडवांटेज
हमें मिलना चाहिए। सेनेट में जी, सेनेट में 2 नुमाइंदे हर रियासत से सेनेट में रहेंगे। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन बेस्ड हाउस है, आबादी को रिप्रेजेंट करता है। तो आबादी जहां जिसकी ज्यादा होगी उसके ज्यादा नुमाइंदे होंगे, जिसकी कम होगी उसके कम नुमाइंदे होंगे। सेनेट टेरिटरी को रिप्रेजेंट करता है, आबादी को रिप्रेजेंट नहीं करता, इसलिए वहां सबके 2-2 नुमाइंदे होंगे। ठीक है। तो वेयर एज नॉर्थ की स्टेट्स ये चाहती थी कि स्लेव्स को अगर राइट टू वोट नहीं है, स्लेव्स को अगर राइट टू सिट इन द पार्लियामेंट नहीं है, तो फिर स्लेव्स को आप काउंट क्यों कर रहे हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ इलेक्शन। तो इस पर एक डेडलॉक आया। इस डेडलॉक को रिजॉल्व किया गया 3/5 प्रिंसिपल के तहत। 3/5 प्रिंसिपल के तहत इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि स्लेव काउंट तो होंगे, जाहिर है वो एग्जिस्ट करते हैं तो काउंट तो करने पड़ेंगे, बट वन स्लेव would be 3/5 of an ordinary American। ठीक है, यानी 3 स्लेव्स अगर मिलेंगे तो एक स्लेव, एक आजाद बंदे की जितनी गिनती उसकी होगी। 3 स्लेव्स मिलेंगे तो एक आजाद बंदे जितनी गिनती होगी। इस कॉन्सेप्ट को 3/5 प्रिंसिपल कहते हैं। इससे काफी हद तक जो एडवांटेज था साउथ की स्टेट्स के पास आबादी का, वो कम हो गया। यानी जहां 40 लाख स्लेव्स थे तो 40 लाख स्लेव्स के बजाय अब जब आबादी में काउंट उनको करें, सीटें जब देंगे तो सीटें देंगे 10 लाख के हिसाब से, 40 लाख के हिसाब से नहीं देंगे। ठीक है। यस, ऑर्डिनरी अमेरिकन सिटीजन में, ऑर्डिनरी अमेरिकन सिटीजन मींस में। तो ये इसको ओबामा ने, जो उनकी लेटेस्ट बुक है द प्रॉमिस्ड लैंड, इस कॉन्सेप्ट को ओबामा ने भी डिस्कस किया है। पेपरों से आप फारिग हो जाए तो कोशिश करें उस किताब को पढ़ें। इट्स अ वंडरफुल रीड अगर आपने ऑलरेडी पढ़ लिया। तो यूं ये मामला भी तय हो गया। फाइनली फिर द कांग्रेस पास्ड दिस कॉन्स्टिट्यूशन in 1787, but it was not immediately implemented. फौरी तौर पर इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। कहा गया that 3/4 number of states have to ratify the constitution, only then it will be implemented। 13 रियासतें हैं अमेरिका की, उन 13 रियासतों का 3/4 रियासतें जब तक इस आइन से एग्री नहीं कर जाती, इसको रेटिफाई नहीं कर देती, हम इस आइन को नाफिज नहीं करेंगे। तो 13 में से 9 रियासतों का इस आइन को रेटिफाई करना जरूरी था। 9 states had to ratify it. So it took another year, and then finally 1789 में इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पहली हुकूमत बनी। 1789 में पहली हुकूमत बनी। 3rd April फर्स्ट कांग्रेस बैठी एंड 30th April फर्स्ट प्रेसिडेंट एंटर्ड ऑफिस। 1789। ठीक है। यहां पर आकर फॉर्मेशन का पार्ट खत्म हो जाता है। यहां पर आकर फॉर्मेशन का पार्ट खत्म हो जाता है। रेटिफाइड, नॉट रेक्टिफाइड, रेटिफाइड। 9 ने कर दिया तो ये इंप्लीमेंट हो गया।
इवेंचुअली 1791 में सब स्टेट्स ने इसको रेटिफाई कर दिया था, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स 1791 में इसमें ऐड किए गए। ठीक है, जी। अब आ जाए स्ट्रक्चर्स या फीचर्स की तरफ। स्ट्रक्चर में पहले तो नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम देखें तो इट इज रिटन एंड ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यह दुनिया का सबसे पुराना ऐसा आइन है, ये दुनिया का सबसे पुराना ऐसा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो अभी तक चल रहा है, फंक्शनिंग, एग्जिस्ट करता है, जो अभी तक चल रहा है, फंक्शनिंग है, एग्जिस्ट करता है। द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फंक्शनिंग रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। It is not, let me clarify, it is not world's oldest constitution, दुनिया की oldest constitution और बहुत सारे। It is world's oldest written constitution that is still working, still functioning. Brief है, it is the briefest constitution of the world as well. दुनिया का सबसे ज्यादा short कॉन्स्टिट्यूशन है। इट ओनली हैज 7 आर्टिकल्स, सिर्फ 7 आर्टिकल है इसके, एज कंपेयर टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉन्गेस्ट है 395 आर्टिकल्स के साथ। आर्टिकल 1 लेजिस्लेचर की बात करता है, आर्टिकल 2 एग्जीक्यूटिव की बात करता है, प्रेसिडेंट की बात करता है, आर्टिकल 4 स्टेट्स की बात करता है। ठीक है जी, आर्टिकल 4 स्टेट्स की बात करता है, और आर्टिकल 5 अमेंडमेंट का तरीकेकार बताता है। आर्टिकल 6 डेट्स कैसे क्लियर करने हैं, ओथ कैसे लेना है, आइन की सुप्रीमेसी की बात करता है। एंड आर्टिकल 7 रेटिफिकेशन की बात करता है, आर्टिकल 7 रेटिफिकेशन की बात करता है। सीधी सिंपल एनालॉजी, ये 7 आर्टिकल्स हैं इसके, सो इट मेक्स इट द ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एवर। इट इज ऑल्सो ए रिजिड डॉक्यूमेंट। It is also a rigid document, difficult to amend. Article 3 is judiciary, judicature. Rigid document, difficult to amend. Amendment procedure क्या है? आप ऑलरेडी जानते हैं कि 2 हाउसेज हैं, 27 अमेंडमेंट्स हैं अभी तक, 27 अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट प्रोसीजर ये है that House of Representatives, which is 435, Senate, which is 100, they both have to, Article 5 is amendments, Article 6 is supremacy of the Constitution, oaths of the President, Chief Justice, and how states and federal government shall repay its debts. ठीक है, सेक्शंस के रौले में पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चे। कॉन्स्टिट्यूशंस में हम सिर्फ आर्टिकल्स की हद तक महदूद रहते हैं, ठीक है, कोट करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आप जाएंगे तो फिर वहां आर्टिकल 7 है जी,
जो कहता है कि स्टेट्स हैव टू रेटिफाई, ठीक है, इतनी स्टेट्स रेटिफाई करेंगी तो ये कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होगा। तो an amendment can be initiated in either of the houses, HOR में भी इनिशिएट हो सकती है, सेनेट में भी इनिशिएट हो सकती है। दोनों की 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप सेपरेटली, अलग अलग, ये ज्वाइंट सेशन में नहीं होगा, अलग अलग 2/3 आप लाएंगे। उसके बाद ये जाएंगी स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास। जहां 3/4 नंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स have to ratify it. 2/3 मेजॉरिटी से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, 2/3 मेजॉरिटी से सेनेट, उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर में कितनी तादाद से, कितनी परसेंटेज से आपने पास करना है, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि कितनी रियासतों की असेंबलियां आपको रेटिफाई करती हैं। तो 3/4 नंबर ऑफ स्टेट्स, नॉट बाय 3/4 मेजॉरिटी, नो, 3/4 नंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स हैव टू रेटिफाई द अमेंडमेंट। जैसे ओरिजिनल आइन को 3/4 ने रेटिफाई किया था, उसी तरह इसको भी 3/4 ने रेटिफाई करना है, तो इसमें अमेंडमेंट होनी है, ठीक है। यार ये नीटली लिखने वाला काम जो है ना, मुश्किल है, बट आई विल ट्राई, कोशिश करें, ठीक है। नहीं, इलेक्टोरल कॉलेज, ये एक तो ये जहन में रखिए कि ये इलेक्टोरल कॉलेज नहीं है इतिहास, एक तो ये जहन में रखिए, और दूसरा ये जहन में रखिए कि इलेक्टोरल कॉलेज है 538 मेंबर्स का, नॉट 535, ठीक है। नहीं, 50% जी, 50% प्लस 1 वोट, ऑब्वियसली मेजॉरिटी तो लानी है ना जी, 50% प्लस 1 वोट चाहिए होगा वहां पर, जी लग जाता है। जो टाइम पीरियड है मैक्सिमम, वो 7 इयर्स दिया जाता है रेटिफिकेशन के लिए, ठीक है, 7 इयर्स दिया जाता है। ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉडी किस कॉन्टेक्स्ट में आप पूछ रहे हैं, देन आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन। कोई बॉडी नहीं है, सेनेट वो बॉडी से मुराद है कि कौन सी कमेटी इसको लेकर आती है, अदरवाइज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की 2/3, सेनेट की 2/3, एंड देन का रोल नहीं। ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन में प्रेसिडेंट ऑल्सो हैज टू गिव असेंट, अमेंडमेंट में प्रेसिडेंट की असेंट नहीं। इलेक्टोरल कॉलेज समझाऊंगा, हौसला करें, प्रेसिडेंट तक आते हैं तो समझाएंगे। प्रेसिडेंट ऑर्डिनरी लॉ को वीटो कर सकता है, प्रेसिडेंट अमेंडमेंट को वीटो नहीं कर सकता। ऑर्डिनरी लॉ को वीटो कर सकता है, अमेंडमेंट को वीटो नहीं कर सकता। अभी हमने पढ़ना है प्रेसिडेंट, तो डोंट वरी, करेंगे, ठीक है जी। स्टेट लेजिस्लेचर का वोट हर हाल में चाहिए होगा। इंडिया में है डिवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशन के, कुछ अमेंडमेंट्स पर स्टेट्स का वोट चाहिए, कुछ अमेंडमेंट्स पर स्टेट का वोट नहीं चाहिए। अमेरिका में हर अमेंडमेंट पर स्टेट का वोट चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है। जी असद साहब, कांग्रेस को नहीं, सेनेट को अपर हाउस कहते हैं, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट अपर हाउस कहते हैं, ठीक है, तो वो बात ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्टीट्यूशन अगर लेजिस्लेचर की बात करें तो ब्रिटिश पार्लियामेंट है जी। एनी अदर क्वेश्चन?
ओके जी, आज यहीं तक, कल इसको कंप्लीट करेंगे। प्रेसिडेंट भी उसमें आएगा, सेपरेशन ऑफ पावर भी उसमें आएगी, फेडरलिज्म भी उसमें आएगा। तो कल इसको कंप्लीट करके और फिर फर्स्ट प्रेसिडेंट हमारे जो है जॉर्ज वॉशिंगटन, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। 14 to 15 लेक्चर्स होंगे जी टोटल जी। होल सिस्टम बताएंगे यूएस का, फिक्र न करें। स्टेट में मेजॉरिटी चाहिए होती है, सिंपल मेजॉरिटी 50% +1। सारी किताबें अच्छी हैं, आप कोई भी गाइड मैंने बताई, पहली क्लास में मैंने बताई थी, यूएस हिस्ट्री की क्लास में, पहली क्लास में मैंने बताई थी। बुक्स तो रेफर टू योर फ्रेंड्स, दे विल टेल यू। थैंक यू। क्या कर रहा भाई? वो यानी करवा देंगे, मुझे आ रही समझ, ये मुझे आ रही समझ, कल करवा देंगे। क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर पूछेंगे। सेकंड प्रेसिडेंट वाज एलेक्स हैमिल्टन, नहीं, सेकंड प्रेसिडेंट वाज जॉन एडम्स, नॉट एलेक्स हैमिल्टन, जॉन एडम्स। एलेक्स हैमिल्टन फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी। एक बुक इनफ है। आई होप दैट टू कि वो इनफ हो, इंशाल्लाह होगी। 2 दफा, 3 बार नहीं, 2 दफा। ट्रीटी ऑफ पेरिस ट्वाइस, 1763 एंड 1783, और दोनों दफा मैंने बताई। कोर्स हम भी क्लास में बोलते हैं, साथ साथ गाइड्स में भी दी हुई है, बुक्स में भी दी हुई है। सेम नेम इसलिए है कि दोनों पेरिस में हुई थी, दैट्स व्हाई। ऑथेंटिक ऑफ इट। आसान कोर्स आप प्रेसिडेंट्स की कोर्स ले सकते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स की कोर्स ले सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सेंटेंस 10 अमेंडमेंट्स मैं करवाऊंगा, वैसे तो सारी करवाऊंगा, बट यू डोंट हैव टू मेमोराइज। पहले 10 अमेंडमेंट्स को जनरली आप पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं अमेंडमेंट्स को मेमोराइज करने की। हाँ जी।